Hello students, today we are going to discuss a very interesting topic in microbiology. Fermentation is a microbial based process. So before coming to a definition of fermentation, we have to know about who is the father of fermentation. So there are your स्क्रीन में आपको दो पिक्चर्स दिख रहे हैं, दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को फादर ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, लुइस पाश्चर एंड एडवर्ड बुशनर। बट डिफरेंस ये है, जो लुइस पाश्चर है, he is the father of microbial fermentation, and Edward Buchner is the father of biochemical fermentation. Biochemical fermentation is the fermentation without microorganism. In this type of fermentation, only enzymes are involved. So now come to the definition of fermentation. What is fermentation? So according to microbiology, there is a definition according to microbiologist. Fermentation is a metabolic process carried out by microorganisms, typically under anaerobic or anaerobic condition is oxygen limited condition, where organic compounds, usually sugars, are converted into simple products like acids, alcohols and gases for energy generation and survival. So microbiology definition हिसाब से fermentation क्या है? It is the anaerobic process, that is an oxygen limited condition where organic compounds, usually sugars, are converted to simple sugars, like लिखा है जैसे acids में convert हो जाएंगे, alcohols में, gases में। और ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? Due for the process for the generation of energy. So there are key features of this fermentation process. Focuses on microbial involvement. Second, occurs under anaerobic or facultatively anaerobic condition. Facultatively anaerobic condition का मतलब थोड़ी ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो भी वो सर्वाइव करेगा और प्रोसेस चलता रहेगा. So this process is used by bacteria, fungi and yeast. Examples are conversion of glucose to lactic acid by lactobacillus species. तो बायोकेमिकल डेफिनेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और उसमें क्या होगा, जो एटीपी जनरेशन होगा बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. एक आपको फिगर साइड में दिख रहा है. अब दो पाइरुवेट से हमारा एक तो पाथवे चला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, जो एरोबिक कंडीशन में होता है. अब हम बायोकेमिकल फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पाथ ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे एनारोबिक पाथ, और इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 2 लैक्टेट. और यहाँ पे क्या होंगे, दो NADH यूज होंगे एंड कन्वर्टेड टू NADP NAD+. सो इसके की फीचर्स क्या है? इट एम्फेसाइजेस एटीपी जनरेशन विदाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस होता है पाइरुवेट के बाद अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल में जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा. बट इस केस में, फर्मेंटेशन केस में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा, इस केस में होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. So it includes glycolysis followed by reduction reaction, example NADH to NAD+, and it describes like pathways like lactic acid और ethanol fermentation. And इसका एग्जाम्पल यही है जो अभी मैंने आपको बताया. एक तो पाइरुवेट से लैक्टेट का, another example is pyruvate is converted to ethanol by releasing carbon dioxide in yeast, that is alcoholic fermentation. Now comes to third definition of fermentation in case of industry. It is the definition given by industrial microbiologist. The definition refers to the large-scale cultivation of microorganisms under controlled condition to produce commercially valuable products such as enzymes, antibiotics, amino acids, biofuels, organic acids, recombinant proteins and more. So इस केस में क्या हो रहा है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में? इट इज अ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब तक जो हम बात कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री की टर्म में, वो बॉडी में भी हो रहा था जो लैक्टेट का बताया. उससे पहले जनरल हमने माइक्रोबायोलॉजी टर्म में दे दिया था. अब आ रहा है इंडस्ट्रियल स्केल, लार्ज स्केल कल्टीवेशन है इसमें, जिसमें कि कमर्शियली काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं लाइक एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, अमीनो एसिड, बायोफ्यूल्स, ऑर्गेनिक एसिड, रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स एंड मोर. एंड इसका की फीचर्स क्या है? इट ऑफ्टन अकर्स अंडर एरोबिक कंडीशन. सो अब तक हम फर्मेंटेशन का नाम सुनते सोचते थे इट कम्स अंडर ओनली एनारोबिक कंडीशन. बट अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये फर्मेंटेशन बोथ कंडीशन हो सकता है, आइदर एरोबिक एंड एनारोबिक. मोस्टली एरोबिक होता है, जो अच्छे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो एरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन होता है इंडस्ट्री में. और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स फर्मेंटर्स, बायोरिएक्टर्स विद कंट्रोल पीएच, टेम्परेचर एंड एरेशन. आपको साइड में एक पिक्चर दिख रहा है, इट इज द पिक्चर ऑफ बायोरिएक्टर. इसमें पूरा कंट्रोल पीएच होगा कंडीशन में, टेम्परेचर पूरा प्रॉपर मेंटेन होगा, एरेशन पूरा मेंटेन होगा, और ये एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशन में हो सकता है.
इट इंक्लूड्स अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो फर्मेंटेशन का जो बेसिक पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में हमारा ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है which comes under bioreactor, and downstream for the purification of the product which is generated during fermentation. This is the basic steps of fermentation process. जो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में फर्मेंटेशन होता है उस तरीके से होता है. पहले हम लोग स्टॉक कल्चर लेते हैं, उसको शेक फ्लास्क में एक प्राइम इनोकुलम बनाते हैं, उसके बाद उसको फर्मेंटर में इनोकुलेट कर देते हैं, छोटे फर्मेंटर में. उसके बाद बड़े लार्ज स्केल में फर्मेंटर में इसको इनोकुलेट कर दिया जाता है टू प्रोड्यूस मास सेल्स और मास प्रोडक्ट विच वी रिक्वायर. उसके बाद इसका पूरा ये दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो द टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, इसका बेसिक जान लेते हैं. देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड. अब इसके बाद जो पायरुवेट के बाद जो हम अभी तक बात कर रहे थे, डिफरेंट फेजेस ऑफ फर्मेंटेशन होता है इन इंडस्ट्री थ्रू माइक्रोब्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. अब कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोपाइनोबैक्टीरियम होते हैं, उसके थ्रू हमारा बनता है प्रोपिनिक एसिड, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ फर्मेंटेशन. फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है हमारा, चीज बन रहा है, योगर्ट बन रहा है, सोया सॉसेस बन रहे हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट स्ट्रेन्स एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस. So third type of important fermentation is Saccharomyces by using the yeast strain Saccharomyces cerevisiae. सबसे कॉमन जो इंडस्ट्री में यूज होती है यही स्ट्रेन यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन एंड बियर. Another type of fermentation using Clostridium strain, इसमें हमारा बनता है एसीटोन आइसोप्रोपेनॉल, जो लैब में यूज होता है अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको मैं आइसोप्रोपेनॉल भी बोलते हैं. और वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी चलता है, नेल पॉलिश रिमूवर, रबिंग अल्कोहल. Third type of fermentation process is using either E. coli, Escherichia coli या Acidobacter. इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एसिड और विनेगर, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है इंडस्ट्री में.